this question is a very good example of how a current issue, or you can say current news, current affairs, issue from the current affairs can be picked up to frame a very decent mains oriented question. So the government of India recently stated that left-wing extremism will be eliminated by 2026. So you must be aware of that this LWE, the government has shown its intentions to eliminate this LWE from India by 2026. So this again question is giving you a background कि ये background है elimination का government का ऐसा commitment है. What do you understand by LWE and how are the people affected by it? Very simple question. What do you understand मतलब आपकी basic understanding क्या है, आप क्या समझते हैं LWE के बारे में. What are the basic you can say ki driving forces related to LWE that you need to write, and also how this LWE affects the people. What measures have been taken by the government to eliminate LWE? So this question is, what are the measures that have already been taken by the government? यहाँ पे भी a very basic thing is that people will often miss it and they will go on writing, they will go on giving suggestions. That is a very basic mistake, that the question is asking have been taken and not like suggestions. Question is not asking you suggestions, but couple of aspirants have actually gone writing suggestions कि हमें मतलब अगर वो डिसीजन लिया भी जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा, बट स्टिल दे विल राइट इन अ वे दैट विल अपीयर एज अ सजेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू राइट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इन सर्टेन वे दैट शुड नॉट अपीयर एज अ सजेशन. आप सजेशन नहीं दे रहे हो, इस तरीके से अपीयर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लाइक यू आर एक्चुअली पॉइंटिंग आउट, लिस्टिंग आउट, हाईलाइटिंग द मेजर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो ये बहुत बेसिक सा आप कह लें कि एक थिन लाइन था जिसको अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया देन योर आंसर इज परफेक्ट. अदरवाइज अगर आप जरा सा मैनेज नहीं कर पाए एंड यू आर राइटिंग इट एज अ सजेशन, भैया ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, देन सर्टेनली यू विल मिस द contextual relevance, contextual demand of the question. So to write an answer in introduction, you can define LWE, or you can, if you are not defining in introduction, you can simply set a background. One more issue that I have found is that people go on writing LWE in introduction. So they will write about LWE in introduction in about say 35 words, 30-35 words में उन्होंने introduction दे दिया LWE का, because they could not figure it out कि what else to write in the introduction. तो LW को इन्होंने डिफाइन कर दिया 35 वर्ड्स में, और उन्हें लगा कि दिस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाला पार्ट पूरा हो गया. तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट अगर आप इस पार्ट को पिक कर रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड को आप उसकी बॉडी में डील करें. ऐसा ना हो कि आपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे दिया और इन द बॉडी पार्ट यू स्टार्टेड राइटिंग अबाउट हाउ आर पीपल अफेक्टेड. कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें आपको नंबर मतलब निगेटिव मार्किंग ऐसा नहीं है, बट अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो सर्टेनली आपके नंबर कम आएंगे. बट इफ यू आर राइटिंग बोथ दीज पार्ट्स इन द एक्चुअल बॉडी ऑफ द आंसर, दैट विल सर्टेनली फिच यू सर्टेनली 1 or 2 मोर मार्क्स. तो इस चीज को ध्यान रखना है. सो अगर आपको इंट्रोडक्शन कुछ नहीं आ रहा है तो सिंपली इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से लिख सकते हैं दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया फॉर पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स हैव इम्पैक्टेड पीपल अ लॉट, पर्टिकुलरली पीपल ऑफ ट्राइबल एंड रूरल एरियाज और ईस्टर्न रीजन्स. आपने 1-2 स्टेट्स का नाम हाईलाइट करके आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते थे कि LWE कैसे एक चैलेंज है इंडिया में. एंड देन इन द बॉडी you need to write, you can write, make body 2 parts. You write about what do you understand. In one part you actually write in a bit more detail, around 40-50 words, what do you understand by the LWE. क्या क्या हो सकते हैं? First is like use of arms, violence against a state to overthrow the state. That is a very basic idea behind LWE, overthrowing the state. तो ये चीज एक बहुत अच्छा टर्म था जो आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड में यूज कर सकते हैं. देन यू कुड हैव आल्सो रिटन अबाउट overthrow the state. Then you could also written about ideology. It is very important.
भाई उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, यूजिंग दैट आइडियोलॉजी दे ट्राई टू ओवरथ्रो द स्टेट। तो आप क्या समझते हैं, आपने लिख दिया। अब इसमें अगर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं दैट हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन फ्रॉम द नक्सलबारी मूवमेंट, तो बहुत अच्छी बात है, दैट विल ऑल्सो वर्क, दैट यू आर सेटिंग अप द बैकग्राउंड। बट बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि दे विल राइट 25 वर्ड्स अबाउट दैट नक्सलबारी मूवमेंट। तो उसमें क्या है कि आपका अननेसेसरी वर्ड जो है, द वर्ड काउंट इज ईटिंग अप द ओवरऑल वर्ड लिमिट। तो कोई जरूरत नहीं है कि नक्सलबारी मूवमेंट के बारे में आपने पूरा बखान किया 30 वर्ड्स में। इफ यू कैन राइट इन वन सेंटेंस दैट इज परफेक्ट, दैट विल वर्क। अब इसको क्रिस्प रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको इस पे ज्यादा लिख दिया आपने, बिकॉज इट इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट हाउ आर पीपल अफेक्टेड। तो कैसे पीपल अफेक्ट हो रहे हैं भाई, तो रूरल एरियाज में गवर्नमेंट स्कीम्स का ना पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना पहुंचना, रोड बन रहा है रोड को उड़ा दिया, स्कूल बन रहा है स्कूल को तोड़ दिया, ब्लास्ट कर दिया। द फियर फैक्टर अमंग द पीपल, लोगों के बीच में हमेशा डर बना हुआ है, समथिंग विल हैपन, माओइस्ट विल कम एंड दे विल किल। तो हाउ पीपल आर अफेक्टेड, तो यू राइट अबाउट लाइफ, यू राइट अबाउट लाइवलीहुड, लेकिन यू राइट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू राइट अबाउट फियर। तो ऐसे करके हमने क्या करा कि एक्चुअल इन हाउ, लाइक इन एक्चुअल सेंस हाउ पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, हमें वो चीज लिखनी है। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ माओइस्ट इंसिडेंट्स आर इंपैक्टिंग दीज पीपल इन दिस वे। ऐसा नहीं कि आपने एक एक वर्ड आपने बस ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाया और लाइफ लिबर्टी कर दिया तो आपने काम हो गया आपका, कि लाइफ लाइवलीहुड का ऐसे से इंपैक्ट हुआ। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बनाना अच्छी बात है, इमेज आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, बट आप इसको एडिशनल रखिए, वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है। एक यू राइट वन सेंटेंसेस ऑन दीज 3-4 पॉइंट्स, एक सेंटेंस कितना 8 या 10 वर्ड, 3 पॉइंट भी अगर आपने लिख दिया तो 30 वर्ड्स। और उसके बाद अगर आप ये फ्लो चार्ट बनाते हैं तो दैट विल एक्चुअली एक्ट एज अ वैल्यू एडिशन एंड दैट विल फिट यू बेटर मार्क्स। So this way, like you could have written this first part, what do you understand? Second is how people are affected, and this very important major part is what measures. तो measures क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, as I highlighted earlier, or have been taken. Suggestions नहीं देने हैं आपको। अब इसे measures में बहुत कुछ है। आप सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की बात कर सकते हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, that is actually very good, you can say, program or scheme of the government for a past couple of decades. तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के बारे में बता सकते हैं आप। You can write about how the security forces और how the CAPF के बारे में बता सकते हैं आप, Central Armed Police Forces, particularly CRPF, how it is empowered by the government to take counter measures। और आप एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं जो एनकाउंटर्स हुए विद मॉइस्ट के साथ, तो उसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट अवेयरनेस, हाउ द गवर्नमेंट इज अवेयर, वर्किंग ऑन जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस अफेक्टेड पीपल, नॉट टू एक्ट इन सपोर्ट ऑफ द माओइस्ट। और यू कैन से कि माओइस्ट का जो प्रोपेगेंडा है उसको ब्रेक करने के लिए, प्रोपेगेंडा मतलब एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट, टेलिंग द ब्रेन वॉशिंग द पीपल, कॉमन पीपल, दैट स्टेट इज नॉट फॉर यू, यू राइट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी एंड ऑल, लैंड ओनरशिप, और उसको लेकर के कैसे दे वेर एनलिस्टिंग, कैसे दे वेर इन्वॉल्विंग द कॉमन रूरल पीपल इनटू देयर आर्म्ड एक्टिविटीज। तो वो प्रोपेगेंडा ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने जो अवेयरनेस रिलेटेड स्टफ्स किए, वर्क करा, उसको भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते थे। एक समाधान स्कीम के बारे में बता सकते थे गवर्नमेंट का, लाइक समाधान स्कीम के बारे में बता सकते थे कि हाउ इट इज वर्किंग टू हैंडल दीज इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, डिसकॉन्टेंट है अमंग द पीपल कि गवर्नमेंट की बेनिफिट्स वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ करप्शन या जो भी रीजन रहा हो। तो जब इंफ्रा के बेनिफिट्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल जब गांव तक पहुंचने लगा तो सर्टेनली सम काइंड ऑफ एलिनेशन स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम द माओइस्ट प्रोपेगेंडा। तो ये चीजें आप जो भी काउंटर मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, सर्टेन स्कीम, सर्टेन सिक्योरिटी मेजर्स, इन चीजों को आपको लिखना है। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट, so same thing again, write a point and write one sentence on it, no need to elaborate. You write a point or you give an example, you write a point or define it in one sentence, that's it, it would have worked.
Then in the conclusion, you simply say that you can write in the conclusion, you can write about the like red corridor or how the Maoist affected LWE affected districts have been reduced and government is on track and working to like eliminate it by 2026. तो एक कंक्लूजन में आपने पूरे आंसर को समराइज कर दिया एंड यू केप्ट इट विजनरी. तो ऐसे करने से दिस क्वेश्चन इज 150 वर्ड्स का क्वेश्चन एक्चुअली वेरी सिंपल था अगर आप ऐसे करते हैं तो, एंड इट वुड हैव वर्क. बट पॉइंट वही है कि एक्चुअली वर्क कर रहा नहीं, उसके लिए आपको एक्चुअल कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि क्या लिखना है उसमें. जानकारी आपको चीजों की होगी, यू विल बी अवेयर ऑफ कि बहुत कुछ आपको पता होगा, बट हाउ टू प्रेजेंट इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट एक्चुअली फेचेस decent marks. See you in next session.